So once again, I welcome in the course Irrigation Engineering, and very good morning to all of you. So in the previous lecture, I have discussed the method of irrigation, and in method of irrigation, I have discussed the two types of method of irrigation we have already discussed. That is the first one is called free flooding or wild flooding, and the second one is border flooding. And before that, I have discussed the what is irrigation and what is the what is the type of irrigation, and what are the various types of project used in the irrigation. And after that, I have discussed the method of irrigation. So let us the quick recap what we have discussed. So I have discussed the firstly I have discussed the what is the irrigation, what are the definition of the irrigation. So I have discussed the definition of irrigation, and after that, advantage of irrigation. I have discussed advantages and disadvantages of irrigation. And after that, I have discussed the what are the various types of irrigation. In various types of irrigation, mainly I have discussed what is the surface irrigation and subsurface irrigation. Surface irrigation, and second one is subsurface irrigation. So surface irrigation, I told you the water is provided, or if the water is at a higher level, so the water is provided by the action of gravity, and here due to the mechanical means or by manuals, generally we use the pumps. And in surface irrigation, this irrigation is further divided into two types. That is, one is flow irrigation, and second one is lift irrigation. And after that, I have discussed the methods of irrigation. So in methods of irrigation, the first I have discussed, that is ordinary flooding. Second I have discussed, that is border irrigation. Third irrigation method that I have to discuss today, that is check basin irrigation. Fourth one is basin flooding. Second one is basin flooding or basin irrigation. Fifth one is furrow irrigation. And the sixth one is furrow irrigation. And after that, I will discuss the 1 minute. So the fourth irrigation I have discussed, that is the basin. I have to discuss, that is basin irrigation. Fifth one is furrow irrigation. And sixth one is sprinkler irrigation. And seventh one is that is called trickle or drip irrigation.
So if I talk about the what are these, so ordinary flooding is a type of surface flooding, surface irrigation. Border irrigation is a type of surface irrigation. Check basin is also the types of surface irrigation. Basin irrigation is also the types of surface irrigation. Full row irrigation is also the type of surface irrigation, but sprinkler irrigation is not the type of surface irrigation, and trickle or drip irrigation, that is also not the type of surface irrigation. So these are the types of surface irrigation. So these are the types of surface irrigation. So we have already discussed the ordinary flooding and border flooding. In border flooding, I have also discussed what is the time required to cover the area A. So that is equal to 2.303 y by f log to the base 10 q by q minus fa, and the maximum area that is equal to the discharge divided by the infiltration rate or infiltration rate of the soil. So now I am going to discuss what is the check basin irrigation. So in what is check basin और check flooding irrigation क्या होता है? So check irrigation में क्या होता है? This is the special case of ordinary flooding. Ordinary flooding में हमने क्या किया था कि in ordinary flooding a main ditch is there, and a main ditch is further divided into the subsidiary ditch, and water is flowing from main ditch to subsidiary ditch, and then water is distributed with the help of distributary. Various distributary was there. So this is also the special case of ordinary flooding, in which we generally कह सकते हैं कि इसमें जो वाटर का रेस्ट्रिक्शन है और ज्यादा कर देते हैं एज कंपेयर टू द ऑर्डिनरी फ्लडिंग. वाटर के मूवमेंट का जो रेस्ट्रिक्शन है वो और ज्यादा हमने मूवमेंट जो है और रेस्ट्रिक्ट कर दिया है विद द हेल्प ऑफ मेकिंग वेरियस चेक्स. चेक्स क्या है? एक चेक्स जो है वो स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप का एक एरिया है जिसको हमने बहुत एक पूरे लैंड के एरिया में हमने क्या कर दिया, डिफरेंट चेक्स बना दिया है और उसमें हमने वाटर को प्रोवाइड किया है. तो ताकि क्या है कि हमारा जो वाटर का स्टे हो फॉर सर्टेन टाइम्स के लिए हो, कुछ टाइम के लिए हो हमारा वाटर का जो हमारा स्टे हो. तो इसीलिए हमने विद द हेल्प ऑफ चेक हमने वाटर डिफरेंट चेक्स में हमने क्या किया है, बाय द सब्सिडरी हमारा जो डिच था उससे हमने क्या किया, हमने चेक किया. जो हमारा जो मेन चैनल है उस सब चैनल से हमने क्या कर दिया, डिफरेंट चेक्स में हमने क्या कर दिया है, वाटर्स को प्रोवाइड किया है. तो जिस तरह का ये जो इरिगेशन है जनरली जो यूज किया जाता है, जो वेरी क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स है लाइक पैडी जो है आपका धान की खेती के लिए जो है, जो जनरली जो है इसको हम लोग यूज करते हैं. बिकॉज वहां पे हम कहा है कि वाटर को बहुत टाइम तक आपको क्या करना है, होल्ड करना है. तो उसके लिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने एक बेसिन चेक बेसिन बनाया है. तो दिस इज द टाइप्स ऑफ चेक बेसिन, और इसका जो मैंने बोला कि इट इज द स्पेशल केस ऑफ ऑर्डिनरी फ्लडिंग. तो उसी चीज को हमने यहाँ पे लिखा है कि इट इज सिमिलर टू ऑर्डिनरी फ्लडिंग एक्सेप्ट द वाटर इज कंट्रोल्ड बाय सराउंडिंग चेक्स एरिया विथ लो एंड फ्लैट लेवीज. जो है फ्लैट लेवीज और लो लेवीज को बना के हमने क्या किया, वाटर को हमने होल्ड किया है. Close growing crops such as jowar or paddy are preferred for this method of irrigation, and method is suitable for both more permeable and low permeable soil. अगर ज्यादा भी परमिएबिलिटी सॉइल की होगी तो इजीली क्या हो जाएगा, एक जगह से दूसरे जगह वाटर का फ्लो होगा. और लो परमिएबल होगा तो जितनी सॉइल की अगर परमिएबिलिटी कम होगी तो परमिएबिलिटी जितनी कम होगी उतनी ही ज्यादा देर तक क्या है, वाटर का जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होगा वो ज्यादा होगा. बिकॉज परमिएबिलिटी जो है सॉइल का कम है तो हमारा जो वाटर जो होगा बहुत देर तक रिटेन रहेगा, बिकॉज ड्यू टू द लो परमिएबिलिटी ऑफ द सॉइल. और लो परमिएबल सॉइल कौन कौन सा होता है, जनरली क्ले जो है जिसकी परमिएबिलिटी बहुत कम होती है, तो उसके लिए ये मेथड बहुत ज्यादा सुइटेबल है. आप देख सकते हो यहाँ पे दिस इज द डायग्राम फॉर द चेक फ्लडिंग. यहाँ पे क्या है, ये मेन डिच है और मेन डिच से क्या है फिर ये दिस इज द सब्सिडरी डिच है. और यही जो है, ये जो बोला जा रहा है यही आपका इसको बोला जाता है दिस इज द चेक. जो मैंने बोला कि आइदर स्क्वायर या रेक्टेंगुलर पोर्शन का होगा. और ये डिफरेंस क्या है, हमने लेवीज बनाए हैं. ये देखो इसको हम लोग बोलेंगे लेवीज अलोंग द कंटूर. ये जो है हमारा लेवीज अलोंग द कंटूर है. दीज आर द डिफरेंट चेक्स. ये और देखो इसका अगर मैं नाम दूं 1 2 3 4, सो ये दीज आर द डिफरेंट चेक्स है. हमने क्या कर दिया, सब्सिडी डिश से हमने क्या कर दिया, वाटर को देखो यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है. वाटर को है सब्सिडी डिश से हमने क्या कर दिया, इस चेक में प्रोवाइड कर दिया. तो इस चेक में जितने भी क्रॉप्स हैं क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स है उसके पास क्या है, वाटर जो रिटेन रहेगा फॉर सर्टेन टाइम के लिए क्या है, वाटर आपका रिटेन रहेगा. सो दिस टाइप ऑफ इरिगेशन इज कॉल्ड
चेक फ्लडिंग इरिगेशन मेथड। यहाँ पे दूसरा डायग्राम को भी हमने दिखा है कि दिस इज द डिच और ये डिफरेंट आउटलेट्स है या ओपनिंग्स बोल सकते हैं, और इसी को बोला जाएगा दिस इज द आवर चेक। चेक जो है इधर मैंने बोला कि स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप का होगा, और हमने क्या कर दिया यहाँ से ओपनिंग से हमने क्या कर दिया वाटर को इस चेक्स के लिए प्रोवाइड किया, इसके लिए प्रोवाइड किया, और ये हमारा कनेक्टिंग लेवीज है। लेवीज का काम क्या है कि ये बाउंड्री एक बना दिया है एक चेक और दूसरे चेक के बीच में। ये दूसरा चेक है जिसको हमने नहीं दिखाया है, बस हमने क्रॉस सेक्शन दिखाया है। तो यहाँ पे दूसरा जो क्या है हमने ये दूसरा चेक है, तो एक लेवी है जो क्या है सराउंड कर दिया है एक चेक को दूसरे चेक से, और या सेपरेट कर दिया है ताकि वाटर जो है जो इस चेक में प्रोवाइड किया गया है वो दूसरे में ना जाए और इसी प्लांट्स के लिए वो यूज हो। ठीक है, तो इस तरह के इरिगेशन को हम लोग बोलेंगे चेक फ्लडिंग। चेक फ्लडिंग सबको समझ में आ गया क्या है? हमने क्या बोला, चेक फ्लडिंग जो है वो स्पेशल केस है। हमने वहां पे देखा था ऑर्डिनरी फ्लडिंग में क्या देखा था कि एक मेन सप्लाई डिच था और वहां से हमने सब्सिडी डिच, और सब्सिडी डिच से हमने क्या कर दिया डिफरेंट आउटलेट्स या डिस्ट्रीब्यूटरी से हमने वाटर को प्रोवाइड किया है। लेकिन वहां पे हमने क्या है चेक नहीं बनाया था, चेक हमने नहीं बनाया था, डायरेक्ट हमने जो है सब्सिडी डिश से हमने वाटर को प्रोवाइड कर दिया या सप्लाई कर दिया। अब वाटर किधर जा रहा है ये हमने नहीं देखा था, तो ये स्पेशल केस है, और ये जो स्पेशली जो होता है वो क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए होता है, लाइक पैडी या ज्वार है, इसके लिए हम लोग जनरली यूज करते हैं। चेक फ्लडिंग सबको समझ में आ गया? चेक फ्लडिंग इरिगेशन सबको समझ में आया? यस सर। हाँ, तो दूसरा अगला जो है वो जिसको बोला जाता है बेसिन फ्लडिंग। बेसिन फ्लडिंग क्या है? अब दिस बेसिन फ्लडिंग इज ए स्पेशल टाइप ऑफ किसका? चेक फ्लडिंग। अब बेसिन फ्लडिंग में क्या करते हैं कि एक सराउंडिंग बेसिन डिफरेंट ट्रीज के लिए हम लोग डेडिकेटेड करते हैं एक एक बेसिन। आपने देखा होगा कुछ इस तरह का, मान लो कि ये दिस इज आवर फील्ड है ये हमारा फील्ड है, और फील्ड पे आपने देखा कि कुछ इस तरह का हमने है इस तरह का कुछ प्रोवाइड किया है। एक हमने यहाँ से सब्सिडी डिच बनाया और यहाँ पे हमने क्या कर दिया एक बेसिन बना दिया, फिर यहाँ पे एक इस तरह बनाया और यहाँ पे एक बेसिन बना दिया, और यहाँ पे हमने ट्री को लगाया है। तो आप देखते होंगे कि क्या एक पूरा सराउंडिंग एक बेसिन बना के और डेडिकेटेड किया कि अगर वाटर का सप्लाई इधर हो रहा है तो ये वाला इस ट्री के लिए जो है पूरा का पूरा वाटर जो होगा क्या होगा इस बेसिन के सराउंड में रहेगा, और ये इस पूरा का पूरा वाटर जो यूज होगा इस ट्री के लिए होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो डायग्राम में क्या है, ये डिफरेंट जो आप देख सकते हो, ये सब्सिडी डिच है, ये मेन डिच है हमारा, दिस इज द मेन डिच, और ये सब्सिडी डिच, ये हमारा मेन डिच है और ये सब्सिडी डिच हमने बनाया है। दिस इज आवर कॉल्ड मेन डिच और दिस इज कॉल्ड सब्सिडरी डिच, और दिस इज कॉल्ड बेसिन। हमने सराउंडिंग बेसिन बनाया है किसके? इस ट्री के लॉन्ग। ट्री में तो क्या है वाटर जो सब्सिडी डिश से जाएगा इस ट्री में तो पूरा का पूरा यूज होगा इसी ट्री के लिए। ठीक है, और जनरली जो इस तरह का बेसिन फ्लडिंग जनरली हम लोग जो यूज करते हैं जनरली जो फ्रूट्स के लिए लाइक मैंगो ट्रीज आपका जो है या नट्स ट्रीज के लिए जनरली इसको यूज किया जाता है। तो मेथड एडॉप्टेड स्पेशली फॉर ऑर्चार्ड ट्री, जिसको बोला जाता है ऑर्चार्ड ट्रीज भी बोला जाता है। ऑर्चार्ड ट्रीज में कौन कौन सा आता है? ऐसा ट्रीज जो हमारे लिए कमर्शियली या ये फाइनेंशियली भी हमें बेनिफिट्स हो, जैसे उसका हमें क्या कर सके उसको हम लोग बेच सके। जैसे मैंगो क्या है, मैंगो का ट्री लगा के आपको क्या करना है, आप उसको बिजनेस पर्पस के लिए भी लगा सकते हो, आप बेच सकते हो जिससे हमें बेनिफिट्स हो सकता है। तो उस तरह के ट्रीज को या नट्स ट्री को भी आप बोला जाता है कि ऑर्चार्ड ट्रीज के लिए जनरली ऑर्चार्ड ट्रीज में ही आता है नट्स ट्री या फ्रूट्स का जो ट्री सब होता है। तो क्या है स्पेशल टाइप ऑफ चेक फ्लडिंग, ये स्पेशल टाइप ऑफ चेक फ्लडिंग। आपने चेक्स बनाया और चेक्स के बाद भी हमने क्या किया कि उसमें डिफरेंट ट्रीज को हमने डेडिकेटेड किया है डिफरेंट बेसिन। ये जो है हमारा देख सकते हो आप यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो ये दीज आर द डिफरेंट बेसिन। ये जो है हमारा ये भी बेसिन है, ये भी बेसिन है, आप देख सकते हो, और इस बेसिन में ये जो है हमारा ट्री है। तो ये मेन डिच और मेन डिच से सब्सिडी डिच में आया और हमने एक सराउंडिंग बेसिन बनाया किसके लिए? इस ट्री के लिए हमने डेडिकेट किया उस बेसिन को, और वाटर को सप्लाई किया गया कि पूरा का पूरा वाटर यूटिलाइज हो स्पेशली फॉर दिस ट्री। उसी तरह हमने डिफरेंट सराउंडिंग बेसिन हमने बनाया है और डिफरेंट ट्रीज को हमने लगाया है। तो दिस टाइप ऑफ बेसिन फ्लडिंग, दिस टाइप ऑफ इरिगेशन मेथड इज ए स्पेशल केस ऑफ चेक फ्लडिंग। और ये जो होता है जनरली स्पेशली जो होता है वो ऑर्चार्ड ट्रीज के लिए होता है। कोर्स सैंड्स आर नॉट सुइटेबल फॉर बेसिन इरिगेशन बिकॉज ऑफ हाई पर्कुलेशन लॉसेस। आप कोर्स सैंड को नहीं यूज कर सकते हैं बिकॉज बहुत ज्यादा कोर्स सैंड की परमेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, तो क्या हो जाएगी पर्कुलेशन लॉसेस के चांसेस ज्यादा है। इसलिए इस तरह का बेसिन जो फ्लडिंग है जो हम लोग जो डेडिकेटेड कर रहे हैं एक ही ट्रीज को, तो हम लोग बेसिन फ्लडिंग को नहीं यूज कर सकते हैं। कहाँ पे? हमारा जहाँ पे कोर्स सैंड हो वहां पे हम लोग इस टाइप का इरिगेशन मेथड्स को नहीं यूज कर सकते हैं।
अनदर टाइप ऑफ इरिगेशन दैट इज कॉल्ड फुर्रो इरिगेशन। फुर्रो क्या है? फुर्रो जो है हमारा एक स्ट्रिप चैनल है। हमारा फुर्रो जो क्या है, एक स्ट्रिप, डिफरेंट स्ट्रिप चैनल्स बनाया गया है, और डिफरेंट स्ट्रिप चैनल्स जिसका जो डेप्थ जो होता है जनरली 8 to 30 सेंटीमीटर और 400 मीटर लॉन्ग होता है। और क्या करते हैं उस चैनल में हम लोग, क्या है उस चैनल में हम लोग क्रॉप को नहीं ग्रो करते हैं, एक रीज होता है। जैसे आप देखते होंगे कि आपने देखा होगा इस तरह की खेती को, किसको, पोटैटो को आपने देखा होगा, या आपने ओनियंस को देखा होगा। इस तरह का ट्री को जनरली जो हम लोग उगाते हैं तो क्या करते हैं, एक रीच होता है, और रीच पे क्या करा जाता है, ट्री को लगाया, जो क्रॉप को उगाया गया है, और उसके सराउंडिंग में जो हमारा जो फुर्रो है या चैनल जो है, या उसको आप ट्रेंच भी बोल सकते हो, ट्रेंच को प्रोवाइड किया जाता है। वाटर उसी ट्रेंच या उसी फुर्रो के लॉन्ग हमारा क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। और जैसे हमारा सॉइल, सराउंडिंग सॉइल जो सैचुरेट हो जाता है, तो क्या होता है, हमारा पूरा का पूरा वाटर जो होगा वो पहले तो आपके नीचे चला जाएगा, और ड्यू टू द कैपिलरी एक्शन के कारण क्या है, जो भी क्रॉप्स है वो हमारा पूरा का पूरा वाटर को यूज कर लेता है। तो इस तरह के इरिगेशन मेथड्स को बोला जाता है क्या, फुर्रो इरिगेशन। तो फुर्रो इरिगेशन क्या, मैंने बोला कि वाटर इज अप्लाइड टू द लैंड टू बी इरिगेटेड बाय ए सीरीज ऑफ फुर्रोज। फुर्रोज क्या है, कुछ इस तरह का आप देखते होंगे। मान लो कि हमारा मैंने बनाया इस तरह का, ये है, तो इसे बोला जाएगा फुर्रो। और ट्री कहां पे हमें लगाना है, तो ट्री यहां पे रहेगा, जिसको इसको बोला जाता है रिज। इसकी जो डेप्थ जो होती है वो जनरली जो होती है वो 8 to 30 सेंटीमीटर, और जो लेंथ जो होगा वो 400 मीटर के बराबर होगा। तो फुर्रोज आर स्मॉल पैरेलल चैनल, स्मॉल और पैरेलल चैनल्स आर मेड टू कैरी वाटर फॉर इरिगेटिंग द क्रॉप्स, एंड द क्रॉप्स आर यूजुअली ग्रोन ऑन द रीज बिटवीन द फुर्रोज। मैंने बोला कि ये दो फुर्रोज है, उसके बीच में जो रीज है उस पे हमारा क्या होगा, क्रॉप को ग्रो किया जाता है। और जो एग्जाम्पल जो इसका है, तो एग्जाम्पल जनरली जो इसका जो मैंने बताया कि आपका पोटैटो हो गया, आपका ओनियंस हो गया, दिस टाइप ऑफ जो क्रॉप्स है जनरली अगर उगाया गया है, तो जो इरिगेशन मेथड जो हम लोग यूज करेंगे दैट इज फुर्रो इरिगेशन मेथड। यहाँ पे आप देख सकते हो कि तो इसमें क्या होता है कि पूरा का पूरा लैंड जो हम लोग नहीं यूज कर पाते हैं। आप देख सकते हो कि आधा से जो है आपका 50% से आपका जनरली जो लैंड जो यूज होगा वो 20% to 50% ही यूज कर पाते हैं। लैंड जो हम लोग जो यूज कर पाएंगे 20 to 50% ऑफ द टोटल एरिया जो लैंड का होगा उसको हम लोग यूज कर पाएंगे, पूरा का पूरा लैंड। बिकॉज आपने ट्रेंच जो बनाया है या फुर्रो जो बनाया है उसके लिए भी आपने क्या है, एरिया उसी लैंड एरिया में से आपने डेडिकेट किया है। तो हमने बोला कि यहाँ पूरा का पूरा लैंड एरिया को हम लोग नहीं यूटिलाइज कर पाते हैं, ओनली 20 to 50%। सो यहाँ पे बोला गया है इन दिस मेथड ओनली 20 to 50% और 1/5 to 1/2 ऑफ द लैंड एरिया इज वेटेड बाय द वाटर। यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमने बनाया है ये दिस इज आवर मेन चैनल या मेन डिच है, और वहां से हमने क्या बनाया है कि ये फुर्रो है, दीज आर द फुर्रो। अगर मैं दिखा रहा हूँ, दिख रहा है, तो ये फुर्रो है, और देख सकते हो आप यहाँ पे भी दूसरा मैंने डायग्राम दिखाया है, दिस इज फुर्रो। ये हमारा फुर्रो है जिसकी लेंथ जो मैंने बताया 400 मीटर, और जो हमारा होता है डेप्थ जो होगा वो 8 to 30 सेंटीमीटर। और वाटर जो क्रॉप को जो ग्रोन किया जाएगा इस पोर्शन पे, मैंने इसको बताया है कि दिस इज रीज, इस पोर्शन पे ग्रो किया जाएगा, ठीक है। और जो मैंने बोला कि इन दिस मेथड इवेपोरेशन लॉसेज आर लेस एंड लेस पडिंग ऑफ सॉइल इज रिक्वायर्ड। इवेपोरेशन लॉस कम होगा इस सॉइल में दिस टेक्निक्स में। तो इस तरह के इरिगेशन मेथड को हमने क्या बोला कि फुर्रो इरिगेशन टेक्निक। अगला जो है दैट इज वेरी कॉमन एंड वेरी मच यूज इन द यूएस, दैट इज कॉल्ड द स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड। स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि वाटर जो है स्प्रेड थ्रू ए नेटवर्क ऑफ पाइप एंड पंप्स के थ्रू हमने क्या कर दिया, वाटर को स्प्रे किया। तो दिस इज नॉट द टाइप ऑफ सरफेस इरिगेशन, सरफेस इरिगेशन नहीं है ये। हमने वाटर को क्या किया, एक पाइप नेटवर्क बनाया और वाटर को स्प्रे किया, क्या एयर में। क्यों एयर में स्प्रे किया जाता है, व्हाट इज द रीजन टू स्प्रे द फर्स्टली वाटर इज स्प्रे मूव इनटू द एयर, बोलिए। इसका मेन रीजन क्या है कि वाटर का ड्रॉपलेट जो बड़ा साइज है उसको हम लोग एयर में ही क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं, ताकि अगर वाटर का ड्रॉपलेट का साइज बहुत ज्यादा होगा तो हो सकता है कि जहां पे क्रॉप्स है वहां का सराउंडिंग सॉइल जो है वो इरोड हो सकता है। इसीलिए हमने क्या कर दिया, फर्स्टली इसको
हमने एयर में मूव कराया है और वहां से हमने क्या कर दिया कि वाटर के ड्रॉपलेट्स को हमने ब्रेक कर दिया छोटे छोटे पार्ट्स में, और तब जाके ये क्रॉप्स के पास आ रहा है। तो क्या हमारा वाटर का ड्रॉपलेट साइज सोचा हो गया, तो इरोजन का चांस इसमें कम है। इस मेथड में क्या है कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा वाटर का, यूनिफॉर्म हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा, हमारा यूनिफॉर्म होगा। तो क्या होगा इसमें, और भी क्या एडवांटेज है, दिस मेथड इज कैन बी यूज्ड इफ द वाटर टेबल इज हाई। अगर वाटर टेबल हमारा हाई भी है तब भी हम लोग यूज कर सकते हैं। इन सरफेस इरिगेशन जो डिफरेंट हमने सरफेस इरिगेशन यूज किया है, व्हाट विल हैपन इफ द वाटर टेबल इज हाई and if we use the free flooding, check flooding or these other types of surface irrigation, so what will happen, there is a chances of water logging, वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्वांटिटी और डिस्चार्ज जो है हमारा वाटर का जो है वो बहुत कम होता है। जनरली जो होता है वो 20 लीटर पर आवर, तो बहुत कम होता है। तो यहाँ पे आपका अगर वाटर टेबल इवन हाई है देन वी कैन ऑल्सो, तब भी हम लोग यूज कर सकते हैं इस मेथड को, स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड्स को, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो वाटर टेबल हाई है तब भी हम लोग यूज कर सकते हैं। दूसरा इसका क्या एडवांटेज है कि आपको लैंड का प्रिपरेशन यहाँ पे नहीं किया गया है, तो वो वाला जो कॉस्ट है और पूरा का पूरा जो लैंड का प्रिपरेशन है, और सब मेथड सरफेस इरिगेशन में हमने क्या बोला कि फर्स्टली बिफोर प्रोवाइडिंग द वाटर या इरिगेशन को हम लोग स्टार्ट करने से पहले हमने क्या किया कि फर्स्टली वी हैव टू प्रोवाइड प्रिपेयर द लैंड। लैंड को हमने प्रिपेयर किया है, हमने चेक बनाया है, डिच बनाया है या सब्सिडरी डिच बनाया है या डिस्ट्रीब्यूटरी बनाया है, तो वो सब में तो कॉस्ट लगा होगा ना। तो यहाँ पे वो चीज नहीं है। आपका स्प्रिंकलर इरिगेशन में जो आपका जो है लैंड प्रिपरेशन का कॉस्ट आपका बच गया है। लेकिन दूसरा इसका डिसएडवांटेज क्या है कि आप देख सकते हो कि इसका मोशन जो है, इसका मोशन जो होगा स्प्रिंकलर का क्या होगा, अराउंड द क्या है, बोलिए। अगर इसका मोशन अगर देखा जाए तो क्या होगा, सर्कुलर मोशन होगा, क्योंकि ये जो स्प्रिंकलर है जो वो क्या होगा, मूव होता रहेगा एक सेंटर के अबाउट, तो क्या होगा, ये सर्कुलर होगा। तो अगर हमारा फील्ड जो है अगर रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप का है तो क्या होगा, जो कॉर्नर्स के पार्ट होंगे वो इरिगेट नहीं होंगे, जो कॉर्नर्स पे जो हमारा क्रॉप्स है वहां तक वाटर नहीं पहुंचेगा। सो दिस इज द डिसएडवांटेज, और इनिशियल कॉस्ट भी इसकी ज्यादा होती है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी इसकी बहुत ज्यादा होती है। सो दीज आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज आई टोल्ड यू द about the sprinkler irrigation. So here I have written this method is suitable when topography is irregular. Irregular topography है तब भी होगा, because this is not the type of surface irrigation. Topography irregular है, उससे हमें क्या मतलब है, हमने वाटर को पहले क्या किया है, एयर में हमने क्या किया, स्प्रिंकल किया है। इसको क्या बोला जाता है, आर्टिफिशियल रेन मेथड भी बोला जाता है, कि आर्टिफिशियली हमने रेन कराया है, नेचुरल रेन तो नहीं है बट आर्टिफिशियल रेन हमने कराया है। तो इवन टोपोग्राफी इज इरेगुलर तब भी हमें वाटर क्या हो जाएगा, हमारे डिफरेंट क्रॉप्स को पहुंच जाएगा। When soil is excessive permeable और highly permeable, excessive permeable या highly permeable होगा, impermeable सॉरी, तो तब भी इसको यूज कर सकते हैं। When water table is high and water is scarce, बहुत वाटर की कमी हो तब भी हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। सो एडवांटेज जो हमने क्या बोला कि सीपेज लॉसेज आर लेस, हमारा अगर सीपेज लॉस क्या है, लेस होगा। एडवांटेज में जो पहला, लेवलिंग ऑफ लैंड इज नॉट रिक्वायर्ड, और सब हमने इरिगेशन मेथड में जो दूसरे इरिगेशन मेथड में अगर लेवलिंग नहीं होगा तो वाटर जो है दूसरे जगह पहुंच ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पे लेवलिंग ऑफ लैंड इज नॉट रिक्वायर्ड। हम क्या करेंगे कि स्प्रिंकलर का जो वाटर है उसी में हमने क्या कर दिया, फर्टिलाइजर और इंसेक्टिसाइड दोनों को हमने मिक्स कर दिया है। तो क्या है, वाटर के साथ साथ फर्टिलाइजर और इंसेक्टिसाइड भी डिफरेंट क्रॉप्स में एक ही साथ पहुंच गया है। तो जो आप अलग से वाटर को पहले प्रोवाइड किए और फिर फर्टिलाइजर को आपने मिक्स किया उस वाटर में, तो वो वाला भी वो चीज आपका साइमल्टेनियसली इसके साथ हो सकता है, स्प्रिंकलर इरिगेशन के साथ। ठीक है, उसको बोला गया कि लेस लेबर वर्क इज रिक्वायर्ड। मैंने बोला है एज आई टोल्ड यू दैट कि हमने फर्टिलाइजर और इंसेक्टिसाइड को भी वाटर के साथ ऐड कर दिया है, लैंड का प्रिपरेशन नहीं हमने किया है, तो क्या हो जाएगा, लेबर का रिक्वायरमेंट जो है या इस वाले मेथड में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। व्हाट आर द वेरियस डिसएडवांटेज, सो इवेपोरेशन लॉसेस जो होगा वो होगा थोड़ा सा आपका क्या होगा, अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, टेम्परेचर अगर हाई है तो क्या होगा, इवेपोरेशन लॉसेस आर हाई, नॉट सुइटेबल फॉर हेवी इरिगेशन। जहां पे हमें बहुत ज्यादा जिस क्रॉप को इल्ड करने के लिए, ग्रो करने के लिए ज्यादा वाटर का रिक्वायरमेंट है, तो मैंने पहले ही बोला कि इसकी डिस्चार्ज की वैल्यू जो होती है बहुत कम होती है। डिस्चार्ज जो जनरली जो होता है वो 20 लीटर पर आवर या 10 to 20 लीटर पर आवर, तो वहां पे हम लोग इसको नहीं यूज कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि जो ये स्प्रिंकलर्स होता है इसको आपको हैंडल करने के लिए टेक्निकल पर्सन्स आर रिक्वायर्ड टू लुक आफ्टर। और जो है दूसरा चीज ये है कि दो तरह का इसमें होता है, स्प्रिंकलर जो होता है आइदर परमानेंट और टेम्पररी। आपने परमानेंटली अपने फील्ड में सेट कर दिया है या टेम्पररी आपने जब यूज हुआ तो उसको लगाया और फिर हटा दिया, तो उसके लिए आपको स्किल्ड लेबर की जरूरत होगी और लार्ज एनर्जी पावर इज रिक्वायर्ड and initial cost and operating cost are high. So these are the various disadvantage of the sprinkler irrigation. Last
इरिगेशन मेथड जो है दैट इज कॉल्ड ड्रिप इरिगेशन, और इसको बोला जाता है ट्रिकलिंग इरिगेशन। ट्रिकलिंग इरिगेशन भी बोला जाता है। ये इरिगेशन मेथड जो है वन ऑफ द लेटेस्ट मेथड ऑफ इरिगेशन है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि डिफरेंट पाइप नेटवर्क्स में एक फ्लो में हमने आपने नेटवर्क प्रोवाइड किया, उस नेटवर्क में हमने डिफरेंट आपने क्या किया है, आपने नोजल प्रोवाइड किया है, और नोजल जो है बिल्कुल प्लांट के बिल्कुल जो आपका प्लांट्स है या जो क्रॉप्स है उसके बिल्कुल एडजेसेंट में आपको डिफरेंट सर्टेन स्पेसिंग पे आपने ये क्या किया है, आपने प्रोवाइड किया है नोजल्स, और डिफरेंट सर्टेन स्पेसिंग पे किया है। तो यहाँ पे क्या चांसेस है कि आपका डायरेक्ट जो वाटर जो है आपका आपको क्रॉप को मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे बोला है कि वाटर इज डायरेक्टली अप्लाइड टू द रूट जोन ऑफ द प्लांट थ्रू ड्रिप नोजल। तो क्या होगा इसके साथ कि जो इस तरह का इरिगेशन जो हम लोग यूज करते हैं जनरली वेजिटेबल के लिए, लाइक टोमेटो हो गया, आपका कुकुम्बर हो गया, ये सब के क्रॉप के लिए जो है हम जनरली ड्रिप इरिगेशन को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये तो मैंने एक बताया कि दिस कैसे, देखो ये ड्रिप इरिगेशन, दिस इज द नोजल, ये जो है हमारा नोजल है। हमने क्या कर दिया है, वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में यहाँ पे वाटर, इसमें भी जो होता है वाटर का जो ये आपका होगा डिस्चार्ज की वैल्यू जो होगी बहुत कम होगी, बिल्कुल ड्रॉपलेट्स के शक्ल में आपका वाटर होगा, तो इसमें भी डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी बहुत कम होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो एक पाइप नेटवर्क है, और पाइप नेटवर्क डिफरेंट सर्टेन स्पेसिंग पे हमने क्या कर दिया है, नोजल को प्रोवाइड किया। ऐसा नहीं कि हर जो हमारा क्रॉप दिख रहा है उस पे हमने प्रोवाइड किया, मान लो कि एक नोजल हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है, एक यहाँ पे प्रोवाइड किया है, तो सर्टेन स्पेसिंग्स पे हमने क्या कर दिया, डिफरेंट नोजल्स जो है हमने प्रोवाइड किया है, और इस तरह से किया जाता है, तो इरिगेशन किया जाता है। तो जनरली ये वेजिटेबल के लिए हमारा जो है यूज है, लेकिन बहुत कॉस्टली है, ऑपरेटिंग कॉस्ट इज वेरी वेरी हाई। और क्या होगा, इन इवन रेनी सीजन देयर इज अ चांसेस, अगर पाइप का हमारा क्लॉगिंग हो गया, अगर अंदर हमारा क्लॉगिंग हो गया तो क्या हो जाएगा, आप इरिगेशन उसमें नहीं यूज कर सकते हो। दूसरा क्या है कि यहाँ पे नोजल में भी अगर क्लॉगिंग हो गया तो भी इसको हम लोग नहीं यूज कर सकते हैं, तो इसमें भी आपको स्किल्ड लेबर की जरूरत पड़ेगी। तो ये भी है लेटेस्ट टेक्निक, तो है इसका सर्टेन एडवांटेज मैंने बताया, तो सर्टेन डिसएडवांटेज भी बताया कि ये सारा डिसएडवांटेज आपका हो सकता है। तो मैंने क्या बोला कि ड्रिप नोजल्स क्या होता है, ऑल्सो कॉल्ड इमीटर्स और वाल्व्स, आर फिक्स्ड ऑन लैटरल्स एट रेगुलर इंटरवल ऑफ 0.5 to 1 मीटर, और डिस्चार्ज मैंने बताया कि 2 to 10 लीटर पर आवर्स। डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी जो है बहुत कम होती है, 2 से 10 लीटर पर आवर। और ड्रिप इरिगेशन इज बेस्ट सूटेड फॉर रो क्रॉप्स एंड ऑर्चार्ड्स सच एज टोमेटो, ग्रेप्स, कॉर्न, सिट्रस, मेलन, कॉलीफ्लावर, कैबेज। मैंने पहले ही बोला है कि ये वेजिटेबल के लिए जनरली इस टाइप के इरिगेशन को यूज किया जाता है। सो ये मेथड जो है जनरली यूज होता है वो वेजिटेबल्स के लिए, और जो कि मैंने बताया क्या क्या है, तो टोमेटो, ग्रेप्स, कॉर्न, सिट्रस, मेलन्स, कॉलीफ्लावर एंड कैबेज के लिए जनरली इसको यूज किया जाता है। बहुत दिस इज द वन ऑफ द एडवांस टेक्निक ऑफ द इरिगेशन मेथड, बट जो ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो थोड़ा सा कॉस्टली होता है, तो और हैंडलिंग करने के लिए आपको स्किल्ड लेबर की भी जरूरत पड़ेगी इसमें भी। बताइए इसमें किसी को डाउट है तो, ड्रिप इरिगेशन या ट्रिकलिंग इरिगेशन में किसी को डाउट, एनी डाउट, एनी क्लैरिफिकेशन? तो अब क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा क्या है। तो ये क्वेश्चन जो है आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन 2002 में पूछा गया था, इन फॉर्म्स ऑफ असर्शन एंड रीजन। बोला गया कि स्प्रिंकलर मेथड ऑफ इरिगेशन हैज ए हायर वाटर एप्लीकेशन या यूज इफिशियंसी। स्प्रिंकलर मेथड ऑफ इरिगेशन हैज ए हायर वाटर एप्लीकेशन इफिशियंसी। और दूसरा बोला गया कि स्प्रिंकलर सिस्टम कॉजेज लेस इंटरफेरेंस इन कल्टीवेशन एंड अदर फार्मिंग ऑपरेशन। क्या होगा आंसर बताइए, स्टेटमेंट सही है या गलत है? बोलो। स्प्रिंकलर मेथड जो यूज किया जाएगा इरिगेशन एज ए हायर वाटर एप्लीकेशन। हाँ, आपको डायरेक्टली वाटर क्या है, आपका तो कोई चैनल बनाया नहीं गया है, डायरेक्टली आपके वाटर के क्रॉप के पास पहुंच जाएगा, तो वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी तो हाई होगी, सही बात है। तो असर्शन तो सही है, लेकिन बोला जा रहा है कि रीजन के बारे में कि स्प्रिंकलर सिस्टम कॉजेज लेस इंटरफेरेंस इन कल्टीवेशन एंड अदर फार्मिंग ऑपरेशन, तो ये गलत है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? असर्शन इज करेक्ट। असर्शन जो है हमारा क्या है, असर्शन जो है वो हमारा करेक्ट है, बट रीजन जो है वो इनकरेक्ट है। कौन सा ऑप्शन हो गया? सी ऑप्शन इज करेक्ट। फिर से दूसरा क्वेश्चन जो है असर्शन रीजन का है, इन द बॉर्डर स्ट्रिप मेथड ऑफ इरिगेशन द साइज ऑफ द स्ट्रिप डिपेंड्स ऑन द सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स, स्लोप ऑफ द लैंड एंड डिस्चार्ज। बॉर्डर इरिगेशन मेथड में क्या होता है कि जो हमारा साइज ऑफ स्ट्रिप्स, मैंने क्या बोला था बॉर्डर इरिगेशन, तो बॉर्डर इरिगेशन में क्या है, पूरा का पूरा लैंड एरिया को
डिफरेंट स्ट्रिप्स में, वेरियस स्ट्रिप्स में हमने क्या कर दिया था, डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो बोला जा रहा है कि द साइज ऑफ द स्ट्रिप डिपेंड्स ऑन द सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स। यस, सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करेगा ना। आप बहुत बड़ा बड़ा स्ट्रिप बना दोगे और सॉइल के जो है क्या है, सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स को नहीं ध्यान दीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर हमारा उससे बेनिफिट आप नहीं ले पाओगे। स्लोप ऑफ द लैंड एंड डिस्चार्ज, सही है। बोला जा रहा है कि बॉर्डर स्ट्रिप मेथड इज ए कंट्रोल टाइप ऑफ सब सरफेस इरिगेशन मेथड। तो मैंने बोला है कि बॉर्डर इरिगेशन मेथड किस तरह का मेथड है, सरफेस इरिगेशन या सब सरफेस इरिगेशन? सरफेस इरिगेशन। तो इसका आंसर क्या है, असर्शन सही है या गलत? असर्शन सही है। हाँ, असर्शन इज करेक्ट, असर्शन करेक्ट। लेकिन क्या है, बॉर्डर इरिगेशन मेथड इज ए border strip method is a type of surface irrigation, not subsurface irrigation. So reason once again it is correct, incorrect. Reason जो है वो क्या है, incorrect है। Why? Because of यहाँ पे लिख सकते हैं कि border strip method is a type of surface irrigation, not subsurface irrigation. Surface irrigation. सरफेस इरिगेशन मैंने बताया कौन कौन सा सरफेस इरिगेशन होता है। अभी हमने बताया था कि सरफेस इरिगेशन कौन कौन सा था। सरफेस इरिगेशन हमने पहले बताया था कि हाँ, लिफ्ट इरिगेशन और फ्लो इरिगेशन। लेकिन उसके बाद फिर हमने बताया था कि कौन कौन सा सरफेस इरिगेशन बताया था, बोलिए। ऑर्डिनरी फ्लडिंग, ऑर्डिनरी और वाइल्ड फ्लडिंग। दूसरा क्या बोला था, बॉर्डर स्ट्रिप मेथड, बॉर्डर स्ट्रिप मेथड। तीसरा क्या बोला, चेक बेसिन, जो आज डिस्कस किया हमने, चेक बेसिन मेथड, बेसिन फ्लडिंग मेथड, बेसिन और फुर्रो इरिगेशन। चलो तीसरा क्वेश्चन करिए। स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम इज सुइटेबल, कहां पे सुइटेबल होगा? द लैंड ग्रेडियंट इज स्टीप एंड सॉइल इज इजिली इरोडेबल। अगर सॉइल इजिली इरोडेबल होगा तो क्या यूज होगा इसको, इसका यूज कर सकते हैं स्प्रिंकलर इरिगेशन को। वाटर जो है सर्टेन हाइट से क्या हो रहा है, वाटर का ड्रॉपलेट क्या है, सर्टेन हाइट से ड्रॉप हो रहा है। तो अगर इरोडेबल होगा तो क्या होगा, पूरा का पूरा जो हमारा सराउंडिंग, जो किसी क्रॉप के सराउंडिंग में जो सॉइल होगा वो पूरा का पूरा इरोड हो जाएगा। तो क्या ये सही स्टेटमेंट है? नहीं। द सॉइल इज हैविंग लो परमिएबिलिटी, ये भी सही नहीं है। तीसरा, वाटर टेबल इज हाई। हाँ, वाटर टेबल अगर हाई होगा तब भी हम उसको यूज कर सकते हैं। मैंने पहले ही बोला कि अदर जो सरफेस इरिगेशन जो हमने यूज किया था, या जो भी हमने इरिगेशन मेथड यूज किया, तो वहां पे क्या है कि अगर वाटर टेबल हाई है और आप वाटर को प्रोवाइड कर रहे हो तो वहां पे वाटर क्वांटिटी जो है वो ज्यादा है। स्प्रिंकलर में आप देख सकते हो कि बहुत कम होता है वाटर का क्वांटिटी। तो वहां पे अगर वाटर टेबल इवन हाई होगा तब भी देयर इज वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम लोग वाटर टेबल अगर हाई है तो, और ये एक एडवांटेज में भी था स्प्रिंकलर इरिगेशन के, एक एडवांटेज में हमने देखा था कि वाटर टेबल हाई है तब भी इस मेथड को हम लोग यूज कर सकते हैं। द क्रॉप्स टू बी ग्रोन हैव डीप रूट्स, डीप रूट्स होगा तो हम लोग यूज ही नहीं कर सकते, बिकॉज मैंने पहले बोला कि क्वांटिटी ऑफ वाटर बहुत कम है, तो वो डीप रूट्स होगा तो उतना डीप तक वो वाटर जा ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग डीप रूट्स के लिए हम लोग नहीं यूज करेंगे स्प्रिंकलर इरिगेशन को। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इवन द वाटर टेबल इज हाई देन वी कैन आल्सो यूज द स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड ड्यू टू द किसके वजह से, वाटर टेबल अगर हाई भी है तो हमारा क्या हो जाएगा, देयर इज नो चांसेस ऑफ वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम। The method of growing crops on ridges running on the sides of water ditches is known as, अभी मैंने बताया था, मैंने इसको दिखाया भी था कि कुछ इस तरह कि वाटर जो क्रॉप है उसको रीजेस पे आपको ग्रो किया गया है। मेथड, हाँ, इस तरह हमने दिखाया था कि रीच पे आपको क्या है, प्लांट को लगाया गया है। दिस इज कॉल्ड रीच, दिस इज कॉल्ड फुर्रो, या स्ट्रिप चैनल भी बोला जाता है। फुर्रो है जिसका डेप्थ को फिर से, डेप्थ कितना था, डेप्थ आता है एग्जाम में कितना, 8 to 30 सेंटीमीटर, और लेंथ जो इसका फुर्रो का बताया गया कितना, 400 मीटर। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन,
in a mildly water scarce area, the drip irrigation could be preferred for growing. बोलो, mildly water scarce area, the drip irrigation Fruits and preferred by vegetables. growing. क्या होगा? ड्रिप इरिगेशन कहाँ पे यूज करेंगे? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। हाँ, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए जो हम लोग यूज करेंगे। तो ये वाला हमारा जो हो गया जो सबसे कॉस्टली मेथड है। तो यहाँ पे जो है हमारा ड्रिप इरिगेशन, इसका एक और नाम क्या है? व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ ड्रिप इरिगेशन? ट्रिकल। हाँ, और वन ऑफ द लेटेस्ट टेक्निक जो है इसी को यूज किया गया है। लेटेस्ट मेथड्स ऑफ irrigation. Next question. In an irrigation system, water was delivered to the field in ditches spaced about 30 meters apart, was allowed to seep into the ground to maintain the water table at such height that the water is available to the crop through the capillary fringe. This method of irrigation is called, क्या होगा? वाटर को अलाउ किया गया है, सीप थ्रू द ग्राउंड में चला गया है और फिर उस वाटर को ट्री क्रॉप जो यूज कर सकता है ड्यू टू द कैपिलरी फ्रिंज। तो क्या है ये? सरफेस इरिगेशन होगा या सब सरफेस इरिगेशन होगा? सब सरफेस। हाँ, सब सरफेस इरिगेशन मेथड है ये। तो दिस इज द सब सरफेस इरिगेशन मेथड। In an irrigation system, land was divided into large number of smaller size unit area, having fairly level surface by blunts and cross ridges. The basins thus created were filled with water to the desired depth and the water retained for some time. This method of irrigation is known as, बोलिए। In an irrigation system, land was divided into large number of smaller size unit area, having fairly level surface by bunts and cross ridges. The basin thus created were filled with water to the desired depth and water retained for some time. This is the key. Some times के लिए किसमें किया गया था? तो किसमें बहुत ज्यादा टाइम के लिए हमें वाटर रिटेन होना चाहिए? किसके खेती के लिए? किस तरह के क्रॉप के लिए? पैडी और ज्वार। तो किस तरह का मेथड था वो इरिगेशन मेथड कौन सा यूज कर सकते हैं? चेक बेसिन। हाँ, चेक बेसिन मेथड्स था। तो चेक बेसिन मेथड जो होगा हमारा वो सही है। चेक बेसिन मेथड्स में जो होगा वाटर्स को क्या है, स्टे किया जाता है फॉर सर्टेन टाइम या रिटेन किया जाता है फॉर सर्टेन टाइम बाय मेकिंग द डिफरेंट चेक्स। और वो चेक्स क्या है? तो मैंने बोला कि जो एक मेन सप्लाई डिच है और मेन सप्लाई डिच से आपका सब्सिडी डिच है और सब्सिडी डिच से फिर हमें चेक्स में वाटर को प्रोवाइड किया गया है। और चेक्स क्या है हमारा? स्मॉलर साइज यूनिट है, आइदर रेक्टेंगल और स्क्वायर शेप का होता है जिसमें हम वाटर को रिटेन कर सकते हैं फॉर सम टाइम्स के लिए। तो दिस इज द चेक बेसिन मेथड। क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो हो जाना चाहिए। फॉर ग्रोइंग इरिगेटेड पैडी द आइडियल वाटर एप्लीकेशन, फिर वही क्वेश्चन है आपको। पैडी इरिगेटेड पैडी के लिए आइडियल वाटर एप्लीकेशन मेथड कौन सा होना चाहिए? आपको वाटर क्या है, आपको थोड़ा देर के लिए आपको क्या करना है, आपको रिटेन करना है। तो कौन सा मेथड जो हम लोग यूज करेंगे? अभी मैंने बताया था कि ज्वार और पैडी के लिए कौन सा इरिगेशन मेथड यूज करते हैं? चेक बेसिन। हाँ, चेक बेसिन मेथड। चेक बेसिन मेथड, इसमें क्या होता है? वाटर कैन रिटेन फॉर सम टाइम। ये कुछ इस तरह का था। ये हमारा मेन सप्लाई डिश था और मेन सप्लाई डिश से हमारा क्या था? सब्सिडी डिश था। और सब्सिडी डिश से हमने यहाँ पे क्या बना दिया है? हमने डिफरेंट चेक्स यहाँ पे हमने बनाया है। फिर यहाँ पे हमारा क्या है? ये दिस इज द सब्सिडी डिच। यहाँ से वाटर को दिया जा रहा है। दिस इज सब्सिडी डिच। दिस इज मेन सप्लाई डिच। दिस इज कॉल्ड चेक। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। ए में है आपका रो इरिगेशन, सब सरफेस इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन और ट्रिकल इरिगेशन। और इधर है आपका विंड वाइड रेंज ऑफ टोपोग्राफी कैन बी इरिगेटेड। दूसरा है नैरो चैनल्स एट रेगुलर इंटरवल, फ्लो डायरेक्ट एप्लीकेशन टू रूट जोन, इम्परवियस सॉइल एट 2 to 3 मीटर डेप्थ। बताइए क्या होगा?
देखो फरो इरिगेशन क्या था हमारा, क्या है फुर्रो जो बनाया गया है आपका क्या है, नैरो चैनल्स ही तो था। बोलो बी ऑप्शन होगा सर। डी। ए का तो दो होगा कि फुर्रो इरिगेशन क्या है, नैरो चैनल्स एट रेगुलर इंटरवल पे बनाया गया था, हाँ ठीक है, ए का दो हो गया। सब सरफेस इरिगेशन क्या होगा, तो सब सरफेस इरिगेशन क्या है, वाटर को नीचे आपको सर्टेन डेप्थ तक आप जा सकते हो, तो ये वाला 2 to 3 मीटर डेप्थ पे होगा, तो बी का 4, बी का 4। स्प्रिंकलर इरिगेशन क्या होगा, तो स्प्रिंकलर इरिगेशन क्या होगा बोलिए, और ट्रिकल इरिगेशन, तो ट्रिकल इरिगेशन क्या है, फ्लो डायरेक्ट एप्लीकेशन टू द रूट जोन। स्प्रिंकलर इरिगेशन बताइए कौन सा आंसर होगा। सर बी होगा, बी। डी। बी ए का ऑप्शन। 3 तो, ए का 3 तो नहीं होगा, बी होगा सर, बी। बी ऑप्शन। ए का 2, हाँ बी का 4, हाँ ठीक है, सी का 1, स्प्रिंकलर इन वाइड रेंज ऑफ टोपोग्राफी, हाँ ठीक है, और डी, हाँ बी ऑप्शन इज करेक्ट। ट्रिकल इरिगेशन क्या होगा, जो हमारा होगा डायरेक्टली रूट जोन पे हम लोग दे सकते हैं। ट्रिकल में हमने क्या किया, ट्रिकल इरिगेशन में बताया कि आपका डिफरेंट जो आपका नेटवर्क है, नेटवर्क पे हमने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल पे हमने क्या किया, सर्टेन स्पेसिंग से हमने क्या किया, नोजल्स को प्रोवाइड किया है, और वहां से हमने क्या किया, डायरेक्टली रूट जोन में उसे वाटर मिल सकता है। तो क्या हुआ वो, दैट इज सी, ट्रिकल का सी का 3 हो गया, सॉरी डी का 3 हो गया, और सी का स्प्रिंकलर इरिगेशन है, तो वाइड रेंज ऑफ टोपोग्राफी कैन बी इरिगेटेड, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। सबको समझ में आया, किसी को डाउट भी है इसमें, चलो इसको करिए। क्वेश्चन नंबर 11, स्प्रिंकलर इरिगेशन इज एन इरिगेशन मेथड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मेड, इट रिक्वायर्स इलेबोरेट प्रिपरेशन ऑफ लैंड बिफोर इरिगेशन। स्प्रिंकलर इरिगेशन के लिए क्या लैंड का प्रिपरेशन करते हैं क्या, नो सर। हाँ तो ये तो गलत हो गया। दूसरा बोल रहा है इट लीड्स टू एक्सेसिव इरिगेशन एंड वाटर लॉगिंग। स्प्रिंकलर इरिगेशन में क्या एक्सेसिव इरिगेशन होता है क्या, एंड वाटर लॉगिंग। इवन मैंने बोला है कि वाटर टेबल अगर हाई भी होगा तब भी इस मेथड्स को यूज कर सकते हैं, तो ये भी गलत है कि वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम तो यहाँ पे होगा नहीं। तीसरा क्या है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट एंड पावर रिक्वायरमेंट इज हाई, ये सही है या सही गलत है, है। हाँ सही है, सही पावर है। का रिक्वायरमेंट चाहिए, इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। और फोर्थ वन इज स्ट्रॉन्ग विंड विल डिस्टर्ब इरिगेशन एप्लीकेशन। सही बात है, अगर विंड का विंड बहुत ज्यादा हाई स्पीड में चल रहा है, तो जैसे हमारा स्प्रिंकलर जो है एयर में, मैंने पहले बोला कि क्या होता है आपका स्प्रे होता है, तो वहां पे अगर विंड होगा तो डायरेक्शन को चेंज कर देगा पूरा का पूरा, तो स्ट्रॉन्ग विंड जो है विल डिसरप्ट इरिगेशन एप्लीकेशन, मतलब जहां पे हमें वाटर को जाना चाहिए था, जहां पे वाटर का एप्लीकेशन होना चाहिए वहां पे नहीं होगा। तो क्या होगा, पहला और दूसरा स्टेटमेंट तो गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज it requires elaborate preparation of land, nahi it doesn't require elaborate preparation of land before irrigation. It leads to excessive irrigation and water logging, nahi it doesn't leads to excessive irrigation and water logging. Even the water table is high, then we can also use the sprinkler irrigation, and the initial investment and power requirement is high, yes, and अगर विंड की स्पीड बहुत ज्यादा रही तो वाटर एप्लीकेशन इफिशिएंसी को डिस्टर्ब कर सकता है। सो 3 and 4 आर करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। सबको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। फुर्रो इरिगेशन, चेक फ्लडिंग, बेसिन फ्लडिंग एंड ड्रिप इरिगेशन, और यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स जो है वो किस इरिगेशन में कौन सा यूज करेंगे। फुर्रो इरिगेशन में मैंने क्या बोला था कि रीज पे आपको क्या जनरली ग्रो किया जाता है, तो रीज पे क्या क्या बनाया जाता है बोलिए, पोटैटो, ओनियंस, बोलो, शुगर केन। चेक फ्लडिंग, चेक फ्लडिंग में क्या बोला था मैंने, चेक फ्लडिंग किसके लिए यूज करते हैं, आपको वाटर रिटेन करना चाहिए, वाटर, पैडी। हाँ वाटर होल्ड करना चाहिए फॉर सर्टेन टाइम, तो पैडी, पैडी और मैंने ज्वार बोला था। बेसिन फ्लडिंग, बेसिन फ्लडिंग में मैंने क्या बोला था कि कोई फ्रूट्स होगा, बोलो कोई फ्रूट्स या नट्स होगा, ठीक है। और ड्रिप इरिगेशन, तो ड्रिप इरिगेशन में मैंने क्या बोला था, वेजिटेबल, तो टोमेटो। अब मैच कराइए कौन सा क्या होगा, ऑप्शन सी। हाँ ए का 2, ए का 2 हो गया, बी का 4, बी का 4। बेसिन फ्लडिंग, बेसिन फ्लडिंग के लिए क्या हो जाएगा, तो 3 कोकोनट ऑयल। ड्रिप इरिगेशन टोमेटो, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट।
अरे अब मेथड ऑफ इरिगेशन से क्वेश्चन छूटेगा आप लोग का? नो सर। हाँ, होपफुली कि आप कर लोगे, ईएससी में भी आएगा या कहीं भी, आप एकेयू का क्वेश्चन भी नहीं छूटना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ट्रिकल इरिगेशन इज adopted where there is acute scarcity of irrigation water. Evaporation losses are eliminated in drip irrigation as water is provided at root level. बोलिए क्या हो सकता है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ट्रिकल Yes, इरिगेशन जो है, तो ट्रिकल इरिगेशन आप या ड्रिप इरिगेशन क्या अडॉप्टेड वेयर देयर इज एक्यूट स्कैरसिटी ऑफ इरिगेशन वाटर, ये तो सही है। अब बोला जा रहा है कि इवेपोरेशन लॉसेस आर एलिमिनेटेड इन ड्रिप इरिगेशन एज वाटर इज प्रोवाइडेड एट रूट लेवल। सो कहीं पे भी इवेपोरेशन लॉस को आप पूरा का पूरा खत्म नहीं कर सकते हो। इवेपोरेशन लॉसेस कैन बी मिनिमाइज्ड, नॉट एलिमिनेटेड। पूरा का पूरा इवेपोरेशन लॉस तो कुछ होगा ना। यहाँ पे देखिए एलिमिनेटेड टर्म जो है वो सही नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कैन बी मिनिमाइज्ड, इवेपोरेशन लॉस को मिनिमाइज किया जा सकता है, ना कि एलिमिनेट किया जा सकता है। ठीक है, तो दूसरा गलत हो जाएगा। वर्ड को आप अच्छे से समझो। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि यहाँ पे लिखा जाता है कि इवेपोरेशन लॉसेस आर मिनिमाइज्ड इन ड्रिप इरिगेशन एट वाटर इज प्रोवाइडेड एट रूट लेवल, तब सही होता। एलिमिनेटेड का मतलब कि इवेपोरेशन लॉस बिल्कुल जीरो ही हो गया है, ऐसा थोड़ी होगा। सो ओनली स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट 2 इज इनकरेक्ट। सबको समझ में आया? सो ए ऑप्शन सही होगा इसका, कि ट्रिकल इरिगेशन जो है अडॉप्टेड किया जाएगा व्हेन देयर इज ए हाई स्कैरसिटी ऑफ इरिगेशन वाटर, बट इवेपोरेशन लॉसेज जो होगा वो इसमें मिनिमाइज किया जा सकता है, नॉट एलिमिनेटेड इन द ड्रिप इरिगेशन। ठीक है, सो इन द नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस द what is the soil water depth relationship, what is the field capacity, और कि वाटर क्वालिटी के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, किस तरह का वाटर क्वालिटी होना चाहिए, एंड व्हाट इज द सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो। सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्लास, अगला क्लास भी। सो ट्राई टू अटेंड द नेक्स्ट लेक्चर। और इसमें किसी को डाउट, एनी डाउट, एनी क्लैरिफिकेशन, किसी तरह का डाउट? नो सर, अभी तक तो नहीं।